Hey guys, in this video we are going to learn how we can integrate the multiple C++ file in Android Studio, basically in Android. So what happens is, unlike Java, ऐसा नहीं होता you gonna simply create a new Java class और वो class work कर जाता है. In C++ you have to create a header file. अगर आप कुछ मल्टीपल फाइल इंटीग्रेट करना चाहते हैं देन हेडर फाइल के साथ साथ आपकी जो एक्चुअल C++ फाइल होती है देन उसमें अगर कोई मेथड लिखते हैं तो आपको कहाँ कहाँ लिखना पड़ता है वो. So all these things, ठीक है. So and also I'm gonna tell you a few important steps जो beginners mistake करते हैं. So let's get started. So what simply first we're gonna do is we're gonna open the Android Studio and create an empty project, and of course I'm gonna use Java, not Kotlin, not anything else. Okay, so I have created the empty project as the name CPP test, right? You can see here. So let's wait till the project gets completed. Okay, so first what I'm gonna say is कि जैसे ही if you'll create any project ना, so अगर आप इसको रन करना चाहोगे, let me show you. This is let me run the project. 100% is gonna give us error, a lot of error, as you can see now. See, a bunch of error कि if there is a beginner तो वो तो घबरा ही जाए भाई, right? So what it says is कि I don't know what the issue is. This app compat है ना, you have to do it to 1.5.0 and this target SDK to the latest one, that means 34. Even in fact you can do 33 as well, but yeah, app compat is very important. You have to do it to 1.5.0 if you wanna avoid the error. So we're gonna sync the project again and let's run the project again. Okay, and hold on. So now see, it has successfully ran the project. So this is the, I don't know what bug is, but yes it is. So now next step would be to we gonna in this video we're gonna learn, as I told, that how we can integrate the multiple C++ files. So for the result, यहाँ पे हम result को show करेंगे. So for that let me give it an ID by saying that result, ठीक है, और इसकी बाइंडिंग भी कर लेते हैं, that means finding. So we're gonna say text view, and then here text view is equals to then find view by ID and then our ID, that was result, right? अभी ये देखो एरर दिखा रहा ना, जैसे ही मैं सिंक करूँगा एरर चली जाएगी. आप just intelligent things. Okay, so for integrating C++ module, इसमें भी एक चीज़ होती है जो कि इम्पोर्टेंट है. जैसे कि सबसे पहले आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो मैंने आई थिंक मेरी फर्स्ट वीडियो में भी बताया, ठीक है. So go to the file and you can see this add C++ to module. Click on this. Now very important step कि यहाँ पे दो तरीके से C++ इंटीग्रेट होता है इन एंड्रॉयड विच इज़ अ पार्ट ऑफ NDK. सो पहला होता है कि एक मेथड होता है जिसका नाम है cmakelist.txt एंड द सेकंड मेथड इज़ android.mk, ठीक है. तो अगर तो आप cmakelist.txt से बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देन आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो एप्लीकेबल नहीं है. बट इफ़ यू आर यूजिंग android.mk तो एक चीज़ याद रखना, जिस भी फोल्डर में ये प्रोजेक्ट है ना उस फोल्डर के नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो फोल्डर जनरेट होता है ना, यहाँ पे मेरा कर्सर देखो C++ का, वो जनरेट ही नहीं होगा और आप ढूंढते रह जाओगे, ठीक है. बट ऑफकोर्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू इट इन cmakelist.txt, right? So if I'll click on this, right? So as you can see now, the it has been created properly. This folder is automatically generated. So अगर स्पेस है और आप android.mk मेथड से बना रहे हो तो ये फोल्डर जनरेट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना. सो नाउ इट सेज डोंट फॉरगेट टू लोड द C++ लाइब्रेरी. यहाँ इसने कोड भी दिया, सो वी गोना कॉपी दिस वन, राइट, एंड देन लेट्स क्रिएट अ क्लास टू इनिशियलाइज द लाइब्रेरी. क्लास का नेम सिंपली मैं लिब ही दूंगा, राइट, एंड हियर वी गोना पेस्ट दैट मेथड, एंड ऑफ कोर्स ये कमेंट हटाना पड़ेगा. इट सेज right, so our library is properly initialized. Now let's make a method. So हम जो इस वीडियो में मल्टीपल C++ फाइल बनाएंगे ना, सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड बना सकते हैं, ठीक है. पहले हम डायरेक्ट करके देखेंगे एंड देन हम उसको एक अलग से फाइल बनाएंगे और उसमें एक मेथड बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, एंड देन वी गोना कॉल दैट फाइल एंड यूज़.
So let's get started. So first we're gonna say public native int, इस मेथड का नाम देते हैं मल्टीप्लाई एंड ये क्या लेगा, ऑफ कोर्स इट इज़ गोना टेक की टू पैरामीटर्स, फर्स्ट वन इज जिसको मल्टीप्लाई करना है, राइट, int a and the second one would be int b. ठीक है. Now what it says is कि this multiplication method is not existing, so here we get this option create GNI function. यहाँ पे क्लिक कर देंगे. Now the function is generated. So first just to test this कि working है नहीं, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. रिटर्न a इंटू बी, ये स्टार का साइन, एस्ट्रिक का साइन, ये मल्टीप्लिकेशन का होता है, राइट, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज. अब ये पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं. सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना सेट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट एंड एक थोड़ा सा स्ट्रिंग भी लगा देते हैं, बोलते हैं रिजल्ट इज कोलन स्पेस एंड देन मेथड हमारा कहाँ है, ये जहाँ पे लाइब्रेरी इनिशियलाइज हुई है. सो ऑफ कोर्स हमने क्योंकि वन टाइम यूज़ है तो लाइब्रेरी का कोई इंस्टेंस हमने नहीं बनाया. सो वी गोना से न्यू लिब, जो हमारा क्लास है जहाँ पे लाइब्रेरी इनिशियलाइज है, डॉट मेथड का नेम आ जाएगा जो कि है मल्टीप्लाई. आप देख सकते हो द फर्स्ट वन. नाउ इट विल टेक द टू पैरामीटर्स, फर्स्ट वन जिससे एंड सेकंड वन जिसको मल्टीप्लाई करना है. सो वी गोना से 2 एंड देन इंटू 6, दैट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से. Now let's test this first. As you can see now result is coming properly, right? Okay, so अभी तो ये हमने डायरेक्टली करा दिया, बट वी गोना मेक अनदर फाइल जो कि हमारा मेन पर्पस इस वीडियो का. सो ये C++ जो फोल्डर जनरेट हुआ ना, राइट क्लिक ऑन दिस न्यू एंड देन दिस C++ सोर्स फाइल. ओके, now इसका नाम let me give as dum, that means dummy. एंड ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि C++ में इसमें क्या होता है, एंड्रॉयड एनडीके में ना, जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो उसकी एक हेडर फाइल बनाना नेसेसरी होता है. अगर आप यहाँ भी नोटिस करो जो डिफ़ॉल्ट फाइल बनी है हमारी, इसमें देखो jni.h है, h स्टैंड फॉर हेडर फाइल. सो ऑफ कोर्स ये जो ऑप्शन है इसको टिक कर देना सो दैट इट शुड जनरेट द हेडर फाइल एज वेल. सो वी गोना क्लिक ऑन दिस ओके बटन. ठीक है, अभी देखो इसने 2 फाइल बनाई, dum.h एंड dum.cpp. तो अब इसके बाद का स्टेप पहला ये है कि चेक दिस cmakelist.txt कि इसमें इसका नाम रजिस्टर हुआ है कि नहीं, dum.cpp का. ये देखो नहीं हुआ, होना चाहिए यहाँ पे. तो ये जो डिफ़ॉल्ट फाइल के आगे आपको इसका भी नाम डाल देना है. ठीक है, आप बोलोगे यार सेम जगह पे एरर नहीं करेगा, स्पेस होना चाहिए. अगर आपको एक और फाइल का नाम देना है, स्पेस दो, देना आपका फाइल का नेम. ठीक है, स्पेस इज मैंडेटरी एंड देन ये काम तो हो गया. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हेडर फाइल में अपना एक मेथड डिफाइन कर देते हैं. लेट्स से इंट एंड वी गोना से मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई किसको करेगा, इंट ए को किससे, बी से. सॉरी, यहाँ तो अपन सिर्फ पैरामीटर ले लेते हैं. मल्टीप्लाई तो मेन फाइल में करेंगे, इंट ए एंड देन इंट बी, दैट्स इट. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा हेडर फाइल. हेडर में हमने ये मेथड डिफाइन कर दिया. अब आते हैं ये मेन फाइल में जो कि अपनी है dum.cpp. अब यहाँ पे हम एक्चुअल मेथड बना ले, पहले इसको सिंक कर लेते हैं, बार बार बोल रहे हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले ना एक दो चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा. सबसे पहले JNI को इंक्लूड कर लेते हैं. सो वी गोना से इंक्लूड, और यहाँ पे हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे JNI को. सो वी गोना से jni.h यानी JNI का हेडर एंड देन अपना ये जो डम का हेडर है, दैट मीन्स डम फाइल का, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो नाउ सिंपली व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मेक अ मेथड, विल से नाउ यहाँ पे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इंट. अब ये मेथड का नेम सेम होना चाहिए जो आपने दिया है हेडर में. सो वी गोना कॉपी दिस वन. ठीक है, एंड देन इंट मल्टीप्लाई एंड ऑफ कोर्स द सेम थिंग. वो मेथड क्या लेता है, वो मेथड यही लेता है, इंट ए एंड देन इंट बी, राइट.
and then अब यहाँ पे what we're gonna do is we're gonna say return this A into B, right? And now what our basically our final step would be कि किधर की फाइनल ये अपनी मेन फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे उसको सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं। सो वी गोना से हैश इंक्लूड, और इंक्लूड में कौन सा हेडर है, डम डॉट एच, ठीक है। अब ये जो ए इंटू बी है ना, इसको सिंपली हम यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो मेथड शो कर दिया मल्टीप्लाई का, ठीक है। और इसमें पास कर देंगे वही ए एंड द सेकेंड विल बी बी। नाउ वी गोना टेस्ट दिस सिंपली एंड एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिले लगा देते हैं बिकॉज देयर इज़ अ मल्टीपल फाइल, तो ये ज़रूरी है। न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड and then interface new runnable and it will take the millis, so we're gonna say 500 millisecond delay, ठीक है। and then इसको उठा के ये डिले के अंदर रख देते हैं। so it's simply 500 मिलीसेकंड के बाद ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये लेट्स रन दिस, सी 12, ठीक है। और इसको और डिले करते हैं जिससे कि समझ में आए, और इसको कर देते हैं लेट्स से 6 इंटू 6, यानी 36 आना चाहिए। अभी डिले है क्योंकि देखो मतलब 1500 मिलीज के बाद रिजल्ट आया 6 इंटू 6 36। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंटीग्रेट द मल्टीपल C++ फाइल in Android NDK, and of course the link to this source code will be in the description, but please note the channel is new so link clickable नहीं होता, so better go to my repository. So my repository link is this one, github.com/maz and then hyphen and then msf, this one, okay. Here you can get all the repositories. If you found the video helpful, then please do like, share and subscribe. Thank you.